دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 7 پیش کشمیر کارواں۔ اختتامی رسمات کو نبھانے کے بعد میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے رکھا والی کے فرعون صف چودھری نوازش علی کے فون کی گھنٹی کھڑکا دی۔ یہ اس سے میرا تیسرا ٹیلی فونک رابطہ تھا۔ وہ لائن پر آیا تو میں نے گمبھیر آواز میں کہا، کہو چودھری، کیسا مزاج ہے؟ تمہارے تن فن اور کلف لگی گردن میں کوئی نرمی آئی یا ابھی تک اسی طرح اکڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارے پاس بکواس کے سوا کچھ اور بات کرنے کو نہیں؟ وہ پھنکارا۔ میں نے اس کی اس حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، بہت کچھ ہے میرے پاس تمہارے سننے اور میرے کہنے کے لیے، لیکن میں اپنی بات میں کہوں گا۔ پہلے تم وہ سن لو جس کی خاطر میں نے آدھی رات کو تمہارا سکون برباد کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم وہاں سے آرام طلب ہو گئے ہو۔ وہ میرے طنز کی کاٹ کو بمشکل برداشت کرتے ہوئے بولا، تم مجھے ایسی کون سی خاص چیز سنانا چاہتے ہو؟ ارے بھئی، تمہارے لونڈے کی آواز ہے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، کیا اپنے لخت جگر کی پیاری پیاری باتیں نہیں سنوں گے اس سے قبل کہ وہ مجھے کسی ناقابل اشاعت خطاب سے نوازتا؟ میں نے فون کے ریسیور کو ٹیپ ریکارڈر کے اسپیکر کے سامنے رکھ کر پلے کا بٹن دبا دیا اور کیسٹ کا ریکارڈ کیا ہوا آخری حصہ بذریعہ فون کراچی سے لاہور کے ایک دور دراز گاؤں رکھا والی میں نشر ہونے لگا۔ میں نے کیسٹ اور ٹیپ ریکارڈر کو پہلے سے سیٹ کر کے رکھا تھا۔ اس کے بعد ہی چودھری نوازش علی کا نمبر ملایا تھا۔ 15-20 سیکنڈ ریکارڈنگ کی پلک جھپکنے میں پلے ہو گئی۔ میں نے ٹیپ ریکارڈر کو سٹاپ کیا اور ریسیور کو کان سے لگاتے ہوئے چودھری سے دریافت کیا، اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا کہ تمہارے سپوت کی زندگی میرے قبضے میں ہے اور وہ زندہ بھی ہے۔ تم نے اس کی ریکارڈ کی ہوئی آواز مجھے سنائی ہے۔ وہ غصے سے بولا، میں براہ راست فیصل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوری سفاکی سے کہا، فی الحال یہ ممکن نہیں۔ تم اسی ریکارڈڈ آواز پر گزارا چلاؤ اور اس بات کو ذہن میں نقش کر لو کہ جب تک تم میرا مطالبہ پورا نہیں کرو گے تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں مشکل سے مشکل ترین حالات سے دوچار ہوتا رہے گا۔ تم نے اس کی آواز کا کرب تو محسوس کیا ہوگا۔ وجدان اولاد شیطان۔ وہ اپنی اعصاب پر قابو نہ رکھ سکا اور گرجدار آواز میں بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ساحل اب شعیب غوری کے پاس پہنچ چکی ہے اور اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا اس وقت تو میرے پاس ہے لیکن یہ سدا میرے پاس نہیں رہے گا۔ میں نے اس کا جملہ اچکا اور ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، میرے ہاتھ سے نکل کر یہ مصیبت زدہ جہاں بھی جائے گا وہاں تک تمہاری رسائی ممکن نہیں ہو سکے گی، کیونکہ اس جہاں میں پہنچنے والوں کے نام اور پتے سنگی تختیوں پر کندہ کیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے افراد کے جن کے لواحقین انہیں باقاعدہ اپنے ہاتھوں سے سپرد زمین کرتے ہیں، ورنہ میں نے جملہ ادھورا چھوڑا اور ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ورنہ بے شمار لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بوری میں بند لاشیں اخبارات کی شہ سرخیاں بنتی ہیں یا پھر گندے نالوں اور گٹر میں سے برآمد ہوتے ہیں، اور ان کے تعفن زدہ وجود سے معاشرے میں سنسنی اور سراسیمگی پھیلتی ہے۔ وہ میری بات کی تکمیل سے پہلے ہی پھٹ پڑا۔ میں نے کراچی کے نیٹ ورک کو پوری طرح سرگرم کر دیا ہے۔ اس کی آواز میں لرزش اور برراہٹ کی آمیزش تھی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں کھوج لوں گا۔ میں نے تمہاری دھمکیاں سننے کے لیے فون نہیں کیا چودھری، میں نے تحقیر امیز انداز میں کہا، میں تمہیں اور تمہارے نیٹ ورک کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہارے کراچی اور لاہور نیٹ ورک کو میں تار تار کر چکا ہوں۔ کیا تم چودھری دلدار اور میاں زاہد حسین کی لرزہ ہیز اموات کو بھول گئے ہو؟ وہ جواب میں کپ کپاتی ہوئی آواز میں مجھے گالیوں میں تولنے لگا۔ یہ اعصاب شکنی کا بین ثبوت تھا۔ کمزور اور بے بس انسان اگر ساتھ ہی کم ظرف بھی ہو تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ چودھری کمزور تو نہیں تھا، تاہم میرے شکنجے نے اسے بے بس ضرور بنا دیا تھا اور اس کی کم ظرفی دور نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں سے مخاطب کیا، میں تمہیں کل شام 7 بجے تک مہلت دیتا ہوں۔ اس وقت تک تمہارا بیٹا میرے پاس محفوظ رہے گا، لیکن اگر کل کا سورج غروب ہو گیا تو پھر فیصل کی زندگی کا چراغ بھی گل ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑا توقف کیا اور لہجے کی سنگینی کو برقرار رکھتے ہوئے مزید کہا، میں کل دن میں کسی بھی وقت تم سے رابطہ کروں گا۔ اس وقت تک تم یہ فیصلہ کر لو کہ ساحل کو کس جگہ اور کب میرے حوالے کر رہے ہو۔ یہ ایک ہاتھ لو اور ایک ہاتھ دو والی ڈیل ہوگی، اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اس معاملے میں کسی لچک کی گنجائش نہیں اور نہ ہی تمہیں دی ہوئی مہلت میں مزید کوئی توسیع کر سکتا ہوں۔ کل شام 7 بجے سورج غروب ہونے سے چند لمحات پہلے، اور بس۔ پھر میں نے چودھری کی کسی بھی بکواس سنے بغیر فون بند کر دیا۔
मेरा दिल इस वक्त हकीकी इत्मीनान और सच्चे सुकून की कैफियत से आशना हो रहा था। मैंने चौधरी नवाज़िश अली जैसे दरिंदा, सिफ्त और जालिम और जाबिर शख्स को बड़ी ही मजबूत नकेल डाल दी थी। उसकी सारी सरकशी और दरिंदगी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं बनकर खारिज हो रही थी। काश वो इस वक्त मेरी निगाह के सामने होता तो मैं उसकी हालत से पूरी तरह लुत्फानंदोज हो जाता। मैंने आज तक चौधरी नवाज़िश अली की एक झलक भी नहीं देखी थी, सिर्फ उसका नाम ही सुना था, जो बहुत ही शर्मनाक और काबिले मुलामत था। मैंने चौधरी और उसकी जात के मुतालिक हर किस्से को जहन से चटका तो बेख्तियार दीवार गिर क्लॉक की जानिब निगाह उठ गई। क्लॉक आधी रात यानी 12 बजे का वक्त बता रहा था। उसी लम्हे क्लॉक का घंटा अपना फरीजा पूरा करने लगा। जब वो खामोश हुआ तो मैंने शहरजाद को फोन करने के लिए रिसीवर की जानिब हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरा हाथ रिसीवर तक न पहुंच सका। बराबर वाले बेडरूम से एक निस्वानी चीख बुलंद हुई और मैं गड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उस बेडरूम में जरगुल सो रही थी। मेरा दिल यकबारगी उछलकर हलक में आ गया। उसके साथ कुछ संगीन सूरत हाल पेश आ गई थी। मैं एक लम्हा जाया किए बगैर अपने बेडरूम से निकल आया। फिर इससे कहले कि मैं जरगुल वाले बेडरूम में कदम रखता, फ्लैट के दाखिली दरवाजे पर तेज दस्तक होने लगी। बेहतियात मेरी निगाह उस दरवाजे की तरफ उठ गई। दस्तक का अंदाज बता रहा था कि अगर मैंने दरवाजा खोलने में एक लम्हे की भी ताहीर की तो दस्तक देने वाला उसे तोड़कर अंदर घुस आएगा। इन नाजुक लम्हात में मेरा जहन दरवाजे और बेडरूम के दरमियान सवालिया निशान बनकर ठटक कर रह गया। फैसले की सूली शायद किसी ऐसे ही वक्त को कहा जाता है। वो कड़े वक्त के आजमाइशी लम्हात थे। सवालिया निशान का कांटा मेरे हलक में पेवस्त हुआ तो मुझे यूं महसूस हुआ जमीन ने मेरे पाँव में आहनी जंजीर डाल दी हो। मुसीबत की घड़ी इजाजत लेकर आती है और ना ही किसी एक समझ से वार करती है। जरगुल की वहशतनाक चीख और दरवाजे पर होने वाली खौफनाक दस्तक दो तरफा यलगार थी। मेरे दिमाग ने जरगुल के हक में फैसला दिया और मैं बैरूनी हालात को नजरअंदाज करके बेडरूम की जानिब लपका। बेडरूम की लाइट ऑन थी। जरगुल ने सोने से कबल लाइट ऑफ करना जरूरी नहीं समझा था। मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मैं चौंक उठा। वो बेड पर अकड़ू बैठी हुई होले होले कांप रही थी। उसकी आंखों में वहशत और चेहरे पर बेपनाह खौफजदगी के आसार थे। मुझसे नजर मिली तो वो सरासीमा लहजे में बोली, वजदान। वो मेरा गला दबा रहा था। वो कौन? मैंने उसके करीब पहुंचकर पूछा। उसी लम्हे एक मरतबा फिर दरवाजा दड़ दड़ बजाया जाने लगा। वो सहमे हुए लहजे में बोली, वजदान, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखो वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसकी बातें बेरब्त और खौफ में डूबी हुई थी। जब मेरी समझ में न आया कि वो किसका जिक्र कर रही है तो मैंने उसे शानियों से झंझोड़ा और कहा, जरगुल, क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं। कौन तुम्हारा गला दबा रहा था? कहीं तुमने कोई ड्रोना हाफ तो नहीं देख लिया? एक मरतबा फिर दरवाजा पीटा जाने लगा। जरगुल ने सहमी हुई नजर से मुझे देखा और बोली, वजदान, मैं गलत नहीं कह रही। हिकमत यार मेरी जान लेना चाहता है। तुम दरवाजा न खोलना। अगर वो अंदर आ गया तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो किसी दरिंदे से कम नहीं। बात के इख्तिताम पर उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की। उसकी इस तराबी हरकत में खौफ पिन्हा था। मैंने इस हरकत को जुज़वी तौर पर कामयाब होने दिया। फिर उसके शाने को थपकते हुए तसल्ली अमेज लहजे में बोला, तुम खुद को संभालने की कोशिश करो, मैं जाकर देखता हूँ दरवाजे पर कौन है। उसकी बाहों की गिरफ्त ढीली हुई। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसे खुद से अलग करूं, लेकिन हालात तकाजा कर रहे थे कि मैं फौरी तौर पर बाहर जाकर दरवाजे पे देखूं कि कौन है और सूरत हाल का जायजा लूं, वरना ऐन मुमकिन था कि दरवाजा देने वाला दरवाजे को चौखट से उखाड़ फेंकता। ये बात तय थी कि जरगुल ने हिकमत यार के मुतालिक कोई भयानक ख्वाब देखा हो, वरना इस फ्लैट के अंदर हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। मैंने उसे तशफ़ी बख्श थपकी देने के बाद दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उस वक्त एक बार फिर दस्तक के अमल को दोहराया गया और उसके साथ ही बुलंद आवाज में ललकार कर कभी कहा गया। आवाज मर्दाना थी, डॉक्टर शराफत से दरवाजा खोलो, मुझे दरवाजा तोड़ने पर मजबूर ना करो। पता नहीं वो कौन सा वाहियात मामला था। कोई किसी डॉक्टर को धमकी दे रहा था। एक बात तो वाज़ेह होगी कि आने वाला हमसे मुतल्लिक नहीं था। मैंने इत्मीनान की सांस लेते हुए दरवाजे के वस्त में नसब आई ग्लास पर आंख जमाई और बाहर का जायजा लेने लगा। उस गिलास ने मुझे एक गुसीले शख्स को दिखाया। वो दरवाजे के ऐन सामने कुछ फासले पर खड़ा था। मैंने एक लम्हे में अंदाजा लगा लिया कि वो शख्स हमारा दुश्मन नहीं था। अगर वो हमारे मुखालिफ धड़ से होता तो दरवाजे के सामने से हटकर एक तरफ खड़ा होता ताकि आई गिलास की मदद से मैं उसे ना देख लूं। इलावाजी, इस सूरत में वो बुलंद आवाज में बोलने की हमाकत भी ना करता। रात के इस पहर हमलावर होने वाले दुश्मन इस अंदाज में एंट्री नहीं देते। वो कोई दूसरा ही मामला था और इस मामले की तह में उतरने के लिए दरवाजा खोलना जरूरी था। ये बात तो तय थी कि अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा वो एक मरतबा फिर से पीट डालेगा। लिहाजा मैंने उसकी सुन लेने का फैसला किया और लाख हटाकर बाहिस्ती दरवाजा खोल दिया। इस अमल के दौरान भी मैंने ये एहतियात मलहूत रखी कि बाहर मौजूद शख्स आनन फानन मुझ पर टूट पड़े तो मैं उसे मुनासिब बचाव कर सकूं।
दरवाजा खोलते ही मैंने उसके सिंगल पट को ओट बना लिया। जैसे ही फ्लैट के दरवाजे का सिंगल पट वाह हुआ, एक पस्ता खामोश आंधी और तूफान की रफ्तार से दंदनाता हुआ अंदर घुस आया। मैं जो दरवाजे की ओट में खड़ा था, एक झटके से बाहर आया और धड़ से मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उस शख्स ने पलट कर मुझे देखा और चौंक उठा। उसकी आंखों में बेयकीनी पाई जाती थी। शायद वो इसी फ्लैट में किसी और की तवक्का कर रहा था, कम से कम मेरी नहीं। कौन हो तुम? मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा। वो मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय बोला, डॉक्टर कहाँ है? फिर वो बेडरूम की जानब चौकन्ना नजर से देखने लगा। मैंने पूछा, तुम किस डॉक्टर का पूछ रहे हो? डॉक्टर फजीला शरीफ, वो बरहमी से बोला। फिर मुतलाशी निगाह से गिरदोपेश का जायजा लेने लगा। जो अपने नाम के बिल अक्स फजीला बदमाश है, एक नंबर की हराफा। मैंने कहा, यहाँ डॉक्टर फजीला क्या, कोई भी डॉक्टर नहीं रहती, तुम गलत जगह पर आ गए हो, तुम झूठ बोलते हो। वो धाड़ा, मैं बिल्कुल ठीक जगह पहुंचा हूँ। डॉक्टर फजीला इसी फ्लैट में रहती है, तुमने इसे कहीं छुपा दिया है। मैं उस हराफा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताओ कहाँ गई वो? उसकी आंखों में इस नामालूम डॉक्टर के लिए नफरत की चिंगारियां थी। मैं एक बार फिर यही कहूंगा, तुम्हें कोई जबरदस्त किस्म की गलतफहमी हुई है। मैंने इसकी हालत के पेश नजर ठहरे हुए लहजे में कहा, यहाँ मैं रहता हूँ और मुझे आए हुए बमुश्किल 2 दिन हुए हैं। जज्बात और गुस्से ने तुम्हारे सोचने समझने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासर किया है। तुम गैर मुतलका फ्लैट में आ गए हो। तुम मुझे चक्कर देने की कोशिश तो नहीं कर रहे? वो शक्की लहजे में बोला। उसी वक्त जरगुल बेडरूम से बरामद हुई। उस शख्स का हाथ बेख्तियार जेब की जानिब बढ़ गया और अगले ही लम्हे उसके हाथ में रिवाल्वर नजर आने लगा। उसने पलक झपकने में जरगुल को अपने रिवाल्वर की निशाने पर रख लिया, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसका रिवाल्वर वाला हाथ झुक गया। वो जरगुल को शायद डॉक्टर फजीला समझा था। मुझे यकीन हो गया कि वो किसी जबरदस्त गलतफहमी का शिकार होकर वहां पहुंचा था। मैंने संजीदा लहजे में उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुश्ताक हैदर, उसने जवाब दिया। और फिर उसकी निगाह अंदरूनी कमरों में झांकने की कोशिश करने लगी। शायद उसे मेरी बात का यकीन नहीं आया था। वो अभी डॉक्टर फजीला की तवक्का कर रहा था। मिस्टर मुश्ताक, मैंने नरम लहजे में उसे मुहातब किया, अगर तुम्हें मेरी बात का एतबार नहीं तो तुम इस फ्लैट में जहां चाहो अपनी मतलूबा डॉक्टर फजीला को तलाश कर सकते हो। ये पेशकश भी तुम्हारी परेशानी को देखते हुए मैं कर रहा हूँ, वरना मैं अगर चाहूँ तो इसी वक्त एक फोन करके तुम्हें पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। और मेरे लिए यह भी मुमकिन है कि मैं तुम्हें खुद ही धिक्के देकर यहाँ से बाहर निकल दूं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने इजाफा करते हुए कहा, रिवाल्वर को जेब में रख लो। मेरे आखिरी जुमले में तहकम पाया जाता था। मेरी बात उसकी अक्ल में आ गई। उसने एक भरपूर नजर मुझ पर डालने के बाद रिवाल्वर को वही ठिकाने लगा दिया जहां से उसे बरामद किया था। आइंदा 20 मिनट के अंदर अंदर वो फ्लैट की अच्छी तरह तलाशी ले चुका था और बिलाहिर नाकामयाब होने के बाद उसने मायूसी में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं धोखा नहीं खा सकता। फ्लैट तो यही है। मैं पहले भी 2-3 मरतबा यहाँ आ चुका हूँ और डॉक्टर फजीला शरीफ से मुलाकात भी कर चुका हूँ, लेकिन आज वो गायब है। मैंने ख्याल अफरोज अंदाज में कहा, हो सकता है वो हमसे पहले यहाँ रहती हो। बहरहाल तुम्हारा मसला क्या है? तुम रिवाल्वर सोनते होनहार अंदाज में डॉक्टर फजीला को क्यों ढूंढते फिर रहे हो? आखिर उसे तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? वो मुंह बिगाड़ कर बोला, ये पूछो क्या नहीं बिगाड़ा। वो एक कातिल है मेरे बच्चे की। उसे कत्ल किया है, वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। मुश्ताक हैदर नामी उस शख्स की आवाज जज्बात से मगलूब थी। मैंने थोड़ी हमदर्दी जताई तो उसने मुझे एक अजीबोगरीब वाकया सुनाया। उसकी बीवी 10 साल के बाद उम्मीद से हुई थी, लेकिन इस फ्लैट में रहने वाली किसी डॉक्टर फजीला शरीफ ने उसका अबार्शन कर दिया था। उसके मुताबिक एक गहरी साजिश थी जिसमें उसकी साली नौरीन और उसकी दोस्त फायजा शामिल थी। बहरहाल वो लोग नहीं चाहते थे कि मुश्ताक की बीवी कलसूम किसी बच्चे को जन्म दे। डॉक्टर फजीला नौरीन की दोस्त थी और वो इस किस्म की केसेस के लिए हासी बदनाम भी थी। मुश्ताक उन दिनों शहर में नहीं था और उसकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर नौरीन अपनी छोटी बहन कलसूम यानी मुश्ताक की बीवी को डॉक्टर फजीला के पास ले गई और डीएनसी के जरिए उसका अबॉर्शन करा दिया। वो तफसील बताने के बाद तैश के आलम में गोया हुआ। अगर मैं कराची में मौजूद होता तो कलसूम को कभी भी उस कातिल डॉक्टर के पास न जाने देता। मुश्ताक ने जहरहंद लहजे में कहा। बच्चे के हवाले से इलाज मुआवजे के सिलसिले में नौरीन की फरमाइश पर 2-3 मरतबा डॉक्टर फजीला से मिलने का इत्तफाक हुआ था और मैंने उसे हासा मशकूक पाया। बाद में जब मैंने उसके बारे में तहकीक की तो उसकी शोहरत मुझ पर खुल गई। बहरहाल मैंने सख्ती से कलसूम को मना कर दिया था कि वो कभी फजीला की क्लिनिक का रुख न करे, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में ये गजब हो गया। ये एक इंतहाई गैर मुतलका किस्सा निकल आया था, लेकिन मुश्ताक की बेबसी और तकलीफ को देखकर मैं उसकी कहानी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। उसके साथ वाकई बड़ा ही जुल्म हुआ था। मैंने उससे पूछा कि जब तुम अपनी बीवी को तंबीह कर दी थी तो फिर वो डॉक्टर फजीला के पास कैसे चली गई?
जबकि 10 साल के बाद उसकी गोद हरी होने की उम्मीद पैदा हुई थी। वो खुद नहीं गई थी, बल्कि उसे बेहोशी की हालत में ले जाया गया था। मुश्ताक ने बताया, कलसूम जीना उतर रही थी कि उसका पांव फिसल गया और वो बुरी तरह गिर गई। इन दिनों वो अपने मेके में थी, चनाचा नौरीन फौरन उसे टैक्सी में डालकर डॉक्टर फजीला के पास ले गई और इलाज के नाम पर डीएनसी के जरिए मेरे बच्चे को कत्ल करवाया। तुमने नौरीन से बात पुरस नहीं की? मैंने सवाल किया। मैंने उसे खरी खरी सुनाई। वो नफरत से बोला। उसका कहना है कि सब कुछ डॉक्टर के मशवरे पर किया गया। डॉक्टर फजीला ने चेकअप के बाद इन पर वाज़ेह कर दिया था कि प्रेगनेंसी बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। अगर फौरी तौर पर अबॉर्शन न किया गया तो बच्चे की जान को सख्त खतरा लाक हो सकता है। वो एक लम्हे को रुका, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं अभी नूरीन के पास से ही आ रहा हूँ। इरादा तो यही था कि डॉक्टर फजीला की खबरगिरी करूंगा, मगर वो यहाँ मौजूद ही नहीं। मैं जानना चाहता हूँ नूरीन के बयान में किस हद तक सच्चाई है। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने पूछा, ये अबॉर्शन वाला वाकया कब हुआ? 20-25 दिन हो गए हैं, उसने बताया, लेकिन मुझे आज शाम ही पता चला है। मैं आज दोपहर को कराची पहुंचा हूँ। फिर वजाहत करते हुए बोला, मेरे काम की नोयत कुछ इसी तरह की है कि बाज़ औक़ात एक माह तक मैं शहर से बाहर रहना पड़ता है। ये लोग तुम्हें फोन या किसी और जरिए से भी तो इत्तला दे सकते थे। मैंने कहा, मेरे ससुराल वाले ने इसकी जरूरत ही महसूस नहीं की। मैंने इंतहाई अफसोस भरे अंदाज में कहा, फिर तो ये वाकई एक जुर्म हुआ। तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया नॉर्मल तो नहीं है, उनसे तो मैं अच्छी तरह निपट लूंगा। वो दांत किचकिचाते हुए बोला, पहले जरा डॉक्टर फजीला का हशर खराब कर लूं। अगर वो जिंदा रही तो पता नहीं कितनी जानों को वो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देगी। उस कातिल डॉक्टर को मैं मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। उसका तैश और लहजे में छुपी हुई संगीनी बताती थी, अगर डॉक्टर फजीला उसके हत्थे चढ़ जाती तो वो उसे कच्चा चबाने में एक लम्हे की भी देर नहीं करेगा। वो इस वक्त जुनूनी हो रहा था। मैंने उसे इत्मीनान से बिठाया और कहा, मिस्टर मुश्ताक, तुम्हारी बीवी के साथ जो वाकया पेश आया है वो बहुत ही अफसोसनाक है। ठहरो, मैं डॉक्टर फजीला के बारे में कुछ मालूम करने की कोशिश करता हूँ। उसकी आंखों में मुसरत हलकोरे लेने लगी। मैंने पूछा कि डॉक्टर फजीला इसी फ्लैट में क्लिनिक चलाती थी? उसने इस बात में जवाब दिया, मैं कलसूम के इलाज के सिलसिले में यहीं पर डॉक्टर से मिला था। मैंने कहा, ये फ्लैट मेरे एक दोस्त का है, मैं उसे फोन करके डॉक्टर फजीला के बारे में पूछता हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो इंतहाई शुक्रगुजार अंदाज में मुझे तकने लगा। मैंने मिनहास बाकर का नंबर डायल किया। राब्ता होने पर मैंने नदामत अमेज लहजे में कहा, मिनहास साहब, बार बार तकलीफ देने पर माजरत चाहता हूँ। दरअसल यहाँ एक ऐसा वाकया हो गया है कि आपसे राब्ता करना जरूरी हो गया है। खैर तो है वजदान? वो तशवीशनाक लहजे में बोला, तुम्हारे साथ ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़ मेरे साथ नहीं बल्कि मुश्ताक नामी एक शख्स के साथ हुई है। वजदान, ये मुश्ताक कौन है? मिनहास की गंभीर आवाज सुनाई दी। इसके सवाल के जवाब में मैंने उसे मुख्तसर उसे उन हालात से आगाह किया। पूरी बात सुनने के बाद उसने कहा, हाँ वजदान, मैंने भी उस डॉक्टर के हवाले से काफी काबिल एतराज किस्से सुने थे, इसलिए मैंने इससे फ्लैट हाली करवा लिया था। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। मैंने चंद रोज कबल क्लिनिक की सेटिंग खत्म करके इस फ्लैट को दोबारा रिहायशी अंदाज दिया था। मैंने कहा, मिनहास साहब, अगर डॉक्टर फजीला ऐसी ही बदनाम जमाना थी तो फिर मुश्ताक हैदर की तरह और लोग भी इसे पूछते हुए यहाँ दस्तक दे सकते हैं। हो सकता है और भी बहुत से लोगों को डॉक्टर से शिकायत हो। मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। वो अपनी भारी और संजीदा आवाज में बोला। मैंने डॉक्टर से फ्लैट हाली करवाने के बाद दरवाजे पर एक नोटिस चिपका करवा दिया था। अब ये किस्सा पुराना हो चुका है। जिनको डॉक्टर के पीछे आना था वो मायूस होकर जा चुके होंगे। मैंने इस नोटिस में वजाहत कर दी थी कि इस डॉक्टर के साथ फ्लैट के मालिक का किसी किस्म का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लिहाजा इसको तलाश करने वाले यहाँ दस्तक देने की कोशिश न करें। वो एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद बात जारी रखते हुए बोला, शायद मुश्ताक नामी ये अहमक शख्स काफी दिनों के बाद वहां आया है, इसलिए परेशान हो रहा है। कोई ऐसा वैसा परेशान जनाब? मैंने अपने सामने मौजूद शख्स के चेहरे पर निगाह डालते हुए कहा, ये तो इस वक्त इतना जुनूनी हो रहा है कि अगर डॉक्टर फजीला इसे मिल जाए तो ये इसका लहू पी जाएगा। ये डॉक्टर को अपने बच्चे का कातिल समझता है। मिनहास बाकर ने कहा कि वजदान, डॉक्टर फजीला के घर का एड्रेस मुझे मालूम है, लेकिन मैं उससे प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ता करके मालूम कर सकता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि फजीला बहादुराबाद में रहती है, लेकिन तुम मुश्ताक को एड्रेस के सिलसिले में मायूस करके वहां से रुखसत कर दो। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर एक तवील सांस खारिज करते हुए बोला, वजदान, तालीम और सेहत किसी भी माशरे के सबब से सबसे अहम शोबे हैं। अगर इन शोबों की नुमाइंदगी करने वाले गलत राहों पर निकल जाएं तो वो माशरती, अहलाकी और तौर पर माशरा तबाह होकर रह जाता है। अफसोस, डॉक्टर फजीला जैसी डॉक्टर्स के खिलाफ कानूनी और अदालती तौर पर कानूनी चाराजोई बहुत ही मुश्किल है।
डॉक्टर के जुर्म की गवाही कोई डॉक्टर ही दे सकता है, और तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये काम इतना आसान नहीं। इसीलिए मैंने एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा कि मुश्ताक जैसे मुतासिर अफराद को जब इंसाफ के लिए कानूनी चाराजोई से मदद नहीं मिलती तो वो गन उठाकर अपना गुबार निकालने चल पड़ते हैं। मिन्हास ने कहा, मैं भी इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम इसे बहला फुसलाकर वहां से रुखसत कर दो, और अगर डॉक्टर फजीला तक पहुंचने में वो कामयाब हो गया तो ये उसके खून में हाथ रंग लेगा। इसके बाद क्या होगा? उसने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर बोला, ये सीधा सीधा कत्ल के केस में जेल चला जाएगा। इसकी बीवी को जिंदा रहने के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करना पड़ेंगे, किसी अपने किसी पराये के आगे हाथ फैलाना पड़ेंगे। जिंदगी बड़ी दर्दनाक है वजदान। मैं कुल्ली तौर पर मिन्हास बाकर से इत्तफाक नहीं कर सकता था, लेकिन मुश्ताक की मौजूदगी में बात को बढ़ाना भी ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने टेलीफोनिक गुफ्तगू इन अल्फाज में खत्म कर दी। मिन्हास साहब, मैं अपने जाती मामलात के सिलसिले में थोड़ी देर बाद आपको फोन करता हूँ, खुदा हाफिज। रिसीवर क्रैडल करने के बाद मुश्ताक हैदर की तरफ में मुतवज्जा हो गया। हमारी गुफ्तगू उसने पूरी ही तवज्जो से सुनी थी। मैंने बड़ी तफसील से उसे सूरत हाल से आगाह किया और तसल्ली तशफी के अलावा इजहार अफसोस के साथ उसे फ्लैट से रुखसत कर दिया। जाने से पहले उसने मुझसे कहा, जनाब आप हाथ से भले आदमी मालूम होते हो, मैंने आधी रात को यहाँ आकर आपको बहुत ही परेशान किया, मैं इसके लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने फराह दिली से कहा। फिर पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया, महमूद आबाद में। तो मुझे अपना मुकम्मल पता नोट करा दो। मैंने कहा, अगर कभी मुझे डॉक्टर फजीला के बारे में कुछ भी मालूम हुआ तो मैं तुम्हें इतला दे दूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकी, जिससे उसके चेहरे पर खुशी बिखेर दी थी। बड़ी ही सूरत से इस बात में सर हिलाते हुए उसने मुझे अपने घर का पता और टेलीफोन नंबर नोट करवा दिया और फिर इंतहाई शुक्रगुजाराना लहजे में कहा, मैं एक मरतबा फिर अपने रवैये और अमल के लिए आपसे माजरत हूँ। मैंने इसका शाना थपथपाया, अपने जज्बात को कंट्रोल में रखो मुश्ताक, तैश और गुस्से से मसाइल हल नहीं हुआ करते। समझदारी से काम लो और अपने मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करो। अपनी बीवी का बहुत ही ख्याल रखो, उस वक्त उसे तुम्हारी बहुत ही जरूरत है। उसकी आंखों में नमी उतर आई, उसकी आंखों में ममनूनियत का समुंदर मौजूद था। मैंने मजीद कहा, क्या तुम्हारी बीवी को ये बात मालूम है कि तुम रिवाल्वर उठाए डॉक्टर फजीला को तलाश करते फिर रहे हो? नहीं, मैंने इस बारे में से कुछ नहीं बताया और बताना भी नहीं, मैंने ताकीदन कहा। उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मुश्ताक हैदर के जाने के बाद मैंने मिन्हास बाकर को दोबारा फोन किया। हाँ मिन्हास साहब, मैंने राब्ता होने पर कहा, मुश्ताक की मौजूदगी में मैं हसास मौजू पर बात नहीं कर सकता था। मैंने चौधरी नवाजिश को एक ओपन वार्निंग दे दी है। मैं समझ गया था। वो मुश्ताक की मौजूदगी के हवाले से बोला। फिर पूछा, चौधरी नवाजिश से क्या डायलॉग हुए? मैंने उसे चौधरी से होने वाली गुफ्तगू से आगाह करते हुए कहा, अब देखना यह है कि वो कितना बाएख्तियार और समझदार चौधरी है। अपनी ताकत और एहतियार के जोम में वो मेरी वार्निंग को कोई अहमियत देता है या नहीं, इससे उसकी समझदारी और सूझबूझ का पता भी चल जाएगा। बेटे का रिश्ता बहुत अहम होता है मिन्हास साहब, रिश्ता बेटे का हो या बेटी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिन्हास ने गंभीर आवाज में कहा, औलाद का गम और खुशी दुनिया के हर गम से ज्यादा और हर खुशी से मुख्तलिफ और निराला होता है। मुझे यकीन है कि वो फैसल के सिलसिले में घुटने टेक देगा। तुम्हारी वार्निंग बेलचक और हाथी संगीन है। समझदारी और हालात की नजाकत भी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। मैंने कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा चौधरी इस बाजी को किस अंदाज में खेलता है। अगर उसे अपने चहीते की जिंदगी अजीज है तो फिर साहिल को उसे मेरे हवाले करना ही होगा। शोएब गौरी किसी भी सूरत में चौधरी नवाजिश से ज्यादा ताकतवर और बारसूख नहीं हो सकता। मैंने चौधरी को पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कई महाजों पर परखा और बरता है। अगर चौधरी शोएब से साहिल की वापसी की फरमाइश करेगा तो मुझे यकीन है शोएब इससे इंकार नहीं करेगा। मिन्हास बाकर की सोच में डूबी हुई आवाज मेरी समात तक पहुंची। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही नजर आ रहा है, और दरपर्दा क्या हो सकता है? मैंने पूछा। हम सिर्फ इम्कान की बात कर सकते हैं। मिन्हास ने कहा, बिलफर्ज चौधरी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है, या यूं कह लो कि मजबूर हो जाता है, लेकिन कल शाम से पहले का वक्त वो हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं गुजारेगा। वो हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किसी तरह फैसल का सुराग मिल जाए ताकि तुमसे डील की नौबत ही ना आए। तो मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने कहा कि बड़ी ही वजाहत से समझ रहा हूँ जनाब। जिस तरह चौधरी अपने बेटे तक पहुंचने के लिए अपने कराची नेटवर्क और शोएब गौरी की CFK को इस्तेमाल में ला रहा होगा, दूसरी तरफ बिल्कुल इसी तरह हम भी साहिल को खोजने की सही में लगे हुए हैं। कामयाबी जिसका मुकद्दर होगी वो पहले अपने मतलूबा बंदे तक पहुंच जाएगा। CFK की बहुत ही मुनज़्ज़म और फाल तंजीम है। शोएब ने लाहौर में मेरी क़यामगाह का सुराग लगा लिया था और फरीद पाशा की कोठी में फोन पर हमारी बातचीत भी हुई थी। शोएब बहुत ही जालिम और सफाक शख्स है।
साउथ वाले मिशन में शामिल हमारा एक बंदा अमजद उसके हत्थे चढ़ गया था। उसे अमजद की जुबान खुलवाने के बाद उसे ठिकाने लगवा दिया। इस तरह शुएब पर यह हकीकत खुल गई कि कराची में आप और लाहौर में फरीद पाशा मेरी पुश्तपनाही कर रहे हैं। आपने इस फ्लैट के बारे में मुझे मुतमईन कर दिया था कि शुएब का इस तरफ ध्यान नहीं जा सकता। बहरहाल शहजाद को बहुत ही मोहतात रहना चाहिए। हाथ और इस फ्लैट की तरफ आते जाते हुए उसे बेहद चौकन्ना रहना होगा, और आप तो हाथ से ही मारूफ आदमी हैं। शुएब गौरी बराह रास्त या छुप कर आप पर वार करने की कोशिश करेगा। हमें अपनी हिफाजत की तरफ हर वक्त बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है, मिन्हास बाकर ने कहा। फैसल तक रसाई से पहले वो किसी भी तरह कोई ओछा वार कर सकते हैं। खुली जंग में सब कुछ मुमकिन है, ये बात मेरे जहन में है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। मैं अपने दुश्मनों की तरफ से गाफिल नहीं रहता। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने पूछा, मेरे काम का क्या हुआ जनाब? वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, तुम्हारा काम हो गया है। मैंने 2 तजर्बाकार और मुस्तद मुसल्ला अफराद होंडाई में उस बंगले की जानिब रवाना कर दिए हैं जहां फैसल को रखा गया है। वो दोनों मेरे भरोसे के आदमी हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचेंगे शहजाद येलो कैब लेकर तुम्हारी जानिब रवाना हो जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? फाइनल प्रोग्राम तो शहजाद के आने के बाद ही बनेगा, मैंने कहा, लेकिन एक बात तय है कि सुबह होने से पहले फवाद का छापा जरूरी है। मुमकिन है कि उसकी जुबान खुल जाने के बाद शुएब के बारे में ताजा तरीन मालूमात हासिल हो सके। इस मौके को जाया करना अक्लमंदी नहीं होगी। फवाद CFK में कोई ऊंची हैसियत नहीं रखता, मिन्हास बाकर ने मुरब्बियाना लहजे में कहा। इस किस्म के कारकुन अपने बास या बिग बास की मामूलात या जाती जिंदगी के बारे में सिफर के बराबर मालूमात रखते हैं। मैं साहल के सुराग के सिलसिले में फवाद की तरफ से ज्यादा पुर उम्मीद नहीं हूं, मैंने ठोस लहजे में कहा। फवाद और जहांगीर एक ही रुतबे की और एक ही हैसियत के मालिक है। जहांगीर से मैंने नहायत ही अहम राज उगलवा लिए थे। मेरा ख्याल है फवाद का सीना भी हाल ही नहीं मिलेगा। बाज़-औक़ात इस किस्म के मामूली कारिंदे बहुत ही कारामद साबित होते हैं। मैं तुम्हारी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा वजदान, उसे ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैं जो महसूस कर रहा हूं मैंने वो बयान कर दिया। मैंने कहा, मैं फवाद को निचोड़ने के बाद किसी और तरफ का रुख करूंगा। हो सकता है वो जहांगीर से मुतल्लिक ही कोई सनसनीखेज इंकशाफ कर दे। अभी तक हम जहांगीर की जिंदगी या मौत के बारे में भी पुरयकीन नहीं है। फिर चंद मिनट तक हमारे दरमियान चौधरी नवाजिश, शुएब गौरी, साहिल और फैसल के बारे में इंतहाई अहम बातें होती रहीं। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर था कि फैसल की हिफाजत और राज को अहमियत दी जाए। फैसल मेरी बसात का एक अहम मोहरा था। जो मेरे पास रहता तो चौधरी की शिकस्त यकीनी थी, लेकिन अगर वो बदकिस्मती से मेरे हाथ से निकल जाता तो फिर मैं हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। ये मंजिल पर पहुंचकर हाथ मलने वाली बात होती और मंजिल पर पहुंचकर मिलने वाली मात होती। साहिल एक मरतबा फिर इतने फासले पर चली जाती कि मैं इससे आगे मैं कुछ सोच न सका। ये सोच की कैसी बंद गली थी जिसमें कदम रखना मुझे गवारा न था। मेरे ख्याल का परिंदा अपनी परवाज भूलकर जमीन बोस हो जाता। साहिल से दूरी जिंदगी से दूरी थी, और जिंदगी से दूर रहकर कोई क्यों कर जिंदा रह सकता है। फोन बंद करने से पहले मैंने मिन्हास बाकर से कहा, मेरी एक छोटी सी फरमाइश है, क्या आप अपने प्रॉपर्टी एजेंट से मालूम करके डॉक्टर फजीला शरीफ की रिहाइश के बारे में बता सकते हैं? ये ऐन मुमकिन है और मुझे कोई एतराज भी नहीं। वो संजीदगी से बोला, लेकिन तुम उसके घर का पता जानकर क्या करोगे? उसके सवाल में गहरी तशवीश थी। मैंने कहा, मिन्हास साहब, जैसे कि मुश्ताक ने बयान किया है और आप भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि डॉक्टर फजीला गैर निसाबी सरगर्मी में मसरूफ थी। अगर उसकी इन मुजरमाना हरकतों की तस्दीक हो जाती है तो उसको थोड़ी बहुत सजा मिलनी चाहिए ना। इंसानी जिंदगी से खेलना कोई खेल तो नहीं। ओ, उसकी फिक्र अमेज आवाज मेरी समाज से टकराई। कहीं तुम डॉक्टर को कोई इबरतनाक सजा तो नहीं देना चाहते? इबरतनाक नहीं, सबक आमोज, मैंने मुहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा। वो भी कोई फौरी तौर पर नहीं। अभी तो मैं अपने इंतहाई जरूरी मसाइल में उलझा हुआ हूँ। जरा फुर्सत मिल जाए तो मैं इस मुजरिम डॉक्टर को देखूंगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने गंभीर आवाज में इजाफा किया। मिन्हास साहब मुश्ताक की बीवी 10 साल के बाद उम्मीद से हुई थी और ये उनका पहला बच्चा था। इस उम्मीद के पैदा हो जाने के बाद उन्होंने कितने हसीन सपने बुने होंगे। अपने आने वाले बच्चे के बारे में क्या क्या प्लानिंग की होगी। औलाद की महरूमी का दुख कोई लावलद ही महसूस कर सकता है। मैंने मुश्ताक की आंखों में धुएं का गुबार देखा है, ऐसा कड़वा और कसीला धुआं जो हजारों रोशन दीपों की यकबारगी बुझने से उठता है। डॉक्टर फजीला की नाम नेहाद मसीहाई ने एक जहर आलूद फूंक मारकर इनकी रोशन जिंदगी को तारीकी के अमीक गार में फेंक दिया है। ये तो कोई बात ना हुई। हाँ, वाकई कोई बात ना हुई, वो तायदी मगर खुश्क लहजे में बोला, बल्कि इसे सरासर ज्यादती कहना चाहिए। और वजदान, अचानक उसका अंदाज नासिहाना हो गया।
तुम्हें इस मुल्क के तूलो अर्ज में ऐसी बहुत सी ज्यादतियों की हजारों लाखों मिसालें मिलेंगी। किस किस का दावा करोगे? मिन्हास बाकर की आवाज से दुख और गहरा सदमा झलकता था। वो इस सूरत-ए-हाल पर कबीदा आतर था और बेहद मलूल था, लेकिन वो जज्बाती आदमी नहीं था, इसलिए रंज के इजहार में जोश कहीं नजर नहीं आता था। गहरी संजीदगी और बुर्दबारी ने उसके जज्बात को मजबूत लगाम दे रखी थी। मैंने कहा, मिन्हास साहब, हजारों लाखों न सही, लेकिन मैं किसी एक फरियादी और कुचले हुए इंसान की दाद रसी तो कर सकता हूँ। अगर मेरे पास चुटकी भर मरहम है तो मैं उससे किसी घायल शख्स का एक जख्म तो ढांप सकता हूँ। कहते हैं कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है, तो क्या एक मजलूम की मदद करना, एक जालिम का हाथ तोड़ना दुखी इंसानियत की तीमारदारी ना होगी? एक जालिम की सरगोबी ना होगी? बेशक होगी। वो भर्राई हुई आवाज में बोला, मैं कल ही तुम्हें इस डॉक्टर का पता मालूम करके बता दूंगा, लेकिन मेरी एक बात ज़हन नशीन कर लो, बल्कि तुम मुझसे मेरी नसीहत भी समझ सकते हो। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह तस्दीक कर लेना कि डॉक्टर वाकई कसूरवार है, क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स ऐसे केस मरीज या मरीज के लवाहकीन के ईमा पर करती हैं। आप इस सिलसिले में इत्मीनान रखें। मैंने तसल्ली अमीज लहजे में कहा, मैंने मुतमईन होने के बाद ही कोई कार्रवाई करूंगा, और वो भी कोई जरूरी नहीं कि मैं इसी वक्त निकल खड़ा हूँ। साहिल का मामला सबसे ज्यादा अहम है। मैं इसे पसे पुश डालकर किसी और सरगर्मी में मुलविस नहीं हो सकता। वैसे आप एक बात तो बताएं। हाँ पूछो, मिन्हास ने संजीदा लहजे में कहा। मैंने पूछा कि आप एक अखबार के एडिटर और पब्लिशर हैं। आप अपने इस ऑर्गन के तवस्सुत से इन माशरती नाहमवारियों की निशानदेही क्यों नहीं करते? मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे जराइम पेशा मोअज़्ज़ज़ अफराद की नकाब कुशाई की जाए तो उसके बहुत से मस्बत नताइज बरामद होंगे। इस नोयत के मज़ामीन और फीचर्स मेरे अखबारात में, बल्कि कमोबेश हर अखबार में शाया होते ही रहते हैं। उसके लहजे की संगीनी बरकरार थी। मैं इस फरीजे से बिल्कुल भी गाफिल नहीं हूँ। आपने इस फर्ज की अदायगी के असरात भी देखे होंगे। कुछ ज्यादा हौसला अफजा नहीं, वो मायूसी से बोला। बे अखबारात में ऐसे मज़ामीन पढ़कर लोगों का शऊर तो बढ़ता होगा। मैंने कहा, अवाम इनसे सबक सीखते होंगे। आपकी कोशिश इस्लाह माशरा के लिए हासी सनसनीखेज साबित हुई होगी, और आप बड़े ही हौसला शिकन अंदाज में कह रहे हैं। वो कथा कलामी करते हुए बोला, वजदान बात दरअसल ये है कि हमारी कौम का मजमूई मिजाज बड़ा ही अफसोसनाक बनकर रह गया है। इस कौम में हम सब शामिल हैं, और मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ डंडे की जुबान समझते हैं और फिर मुसीबत या घड़ी को याद करते हैं, वरना अपनी इस्लाह और बेहतरी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। कौन सी तरकीब और तदबीर ऐसी है जो हमारे पास लिखी हुई मौजूद ना हो, मगर अमल करने से हमारी जान जाती है। वरना हमारे दरमियान तो एक ऐसा नुस्खा कीमिया मौजूद है जो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। ये मुकद्दस किताब हर घर में पाई जाती है, लेकिन ऐसे कितने घर होंगे जहाँ ये बाकायदगी से खुलती भी होगी? और इन लोगों को शुमार करना आसान काम है जो इसकी फराहम करदा तालीमात को समझते होंगे और फिर इसके मुताबिक अपनी जिंदगी भी ढालते होंगे। मिन्हास बाकर एक तल्ख हकीकत बयान कर रहा था जिससे इनकार मुमकिन नहीं। कोई मुनाफिक ही इस इनकार की जुर्रत कर सकता है। यह आसमानी किताब एक कामल राह नजात है, और इसे सोच समझ कर पढ़ा जाए और फिर हलूस से इस पर अमल किया जाए। पूरी दुनिया में इस वक्त मुसलमानों को बड़ा ही कड़ा वक्त है, और इन्हें नित नए तरीकों से जलीलो ख्वार किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बाहसियत मजमूई फुरकान हमीद की पुकार पर तवज्जो देना छोड़ दी है। चंद बालिग आकल और वसी नजर अफराद के अलावा, और ये चंद अफराद दर्जनों में होंगे या सैकड़ों, अपना खून चलाए और अच्छे वक्त के इंतजार के सिवा कुछ नहीं कर सकते। खुशउम्मीदी से बड़ा और कोई सहारा नहीं होता। एक नाउमीद बेआसरा शख्स इस सहारे की बदौलत अपनी मायूसी पर काबू पा सकता है। हाँ, उम्मीद की किरण बड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें जीने की उमंग और आगे बढ़ने का हौसला पैदा करती है। मिन्हास बाकर से गुफ्तगू का सिलसिला मुनकता हुआ तो मैं जरगुल की तरह मतवज्जा हो गया, और विस्तरान खामोश बैठी बड़ी गहरी नजर से मुझे देखे जा रही थी।